Good morning, all of you. Today we are going to learn The Salt Inspector, a short story written by Munshi Premchand. Munshi Premchand's real name is Dhanpat Rai Srivastav. He is a legendary writer of modern Hindi and Urdu literature. He wrote near about 300 short stories and 12 novels. His novel Godan is recorded as milestone in the history of Hindi literature. So this present story is a translation by Vikas Prajapati of the original Hindi story Namak Ka Daroga. The story delineates an honest and dutiful man who sacrifices his job to keep his principle of truth. So now let us begin our short story. This short story is written at the time of British era. At the British era, a new department banning open trade in salt. The salt was a free gift of God. And now people began to trade it illegally, and the people invented many crooked ways. Some took bribe and others do smuggling. So now the government officials had a great time. People gave up the universally honored office of the Patwari and they turned to this department. Even the lawyers also hankered after the salts inspector's post. It was a time when people regarded the English education synonymous with Christianity. So that time the Persian was the dominant language and the Persian knowing persons well read in love stories and erotic literature. Now they were able to get appointed to the highest posts. Now here it is the story of the Munshi Vansidar who was a salt inspector. He also read the unrequited love story of Julaika and also the love stories of Majnu and Farhad. For above the achievement of Nal and Neil and the discovery of America went out in search of employment. Now Munshi Vansidar who was in search of job and he was looking for a good job, and his father was very wise man and he gave his son a very good advice. He told his son that you will understood our sad plight, that we are under a heavy debt. There are girls in the family who are growing up fast like weeds. I am like a tree on the edge that is likely to collapse anytime. Now you are the master and head of the family. Don't bother about the status in a profession, which is like the mausoleum of a peer. Your eye should always be fixed on offerings and chadars. Look for a job with an over and above the salary income. The monthly salary is like the full moon, which is visible only for a day and wanes each successive day and then disappears. The over and above income is like a flowing stream that regularly quenches your thirst. Salary is given by men, that is why it does not take you far. The over and above income is the gift of God, which leads to prosperity. You are a scholar yourself and don't need to be taught anything. One needs to one's understanding. Think of man and his needs and his opportunities. Then do what you think is the best. It always pays to be tough with a person needing favors from you, but it is difficult to tame one who does not need any favor. Keep all this always in front of your eyes. This is my lifetime's accumulation. This is an advice given by Munshi Vansidar's father. In his advice, he told Munshi Vansidar, you have to search a job where you will get over and above income. जो मंथली सैलरी होती है वो एक फुल मून की तरह होती है और
पहले दिन फुल मून रहता है और मंथ एंड तक वो पूरा जीरो हो जाता है, वैसा ही सैलरी है। इसलिए इसके उसके फादर ने बताया है कि आपको जो सैलरी का जॉब चूज़ करना है जहाँ पे ओवर एंड अबव इनकम आपको मिलता है, वैसा आपको क्या है जॉब सर्च करना है। और उनको जो है वो अभी पूरा कर्ज में डूबे हुए हैं। उनके घर में गर्ल्स है और वो पिताजी बताते हैं कि मैं अभी एक ट्री की तरह बहुत बड़ा हो गया हूँ, कभी भी मैं मुरझा जा सकता हूँ। इसलिए पूरी फैमिली की जो कई रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब तेरे पास है, और इसलिए यू हैव टू सर्च अ वेरी गुड जॉब। सो ये इसके बाद मुंशी वंशीदार who was a obedient son, and he listened everything, and then he walked out of his home. And this vast world of perseverance was his friend, intelligence his guide, and self-reliance his aid. But since he had an auspicious start, he was appointed to the post of salt inspector as soon as he had stepped out. और मुंशी वंशीधर को साल्ट इंस्पेक्टर का जॉब मिलता है और वो बहुत खुश होता है, और उनके जो पिताजी है वो भी बहुत खुश होता है, बहुत खुश होते हैं। when the his father heard about this news, he was very happy, and this news his joy knew no bounds. So now he was a salt inspector, वो salt inspector है। it was a winter night, और ये विंटर के नाइट थे। all constables and watchmen of the salt department were dead drunk. Munshi Vanshidhar had been here only for 6 months, but he had impressed his officers with his efficiency and spotless conduct. मुंशी वंशीधर साल्ट इंस्पेक्टर का पद लेके ओनली 6 महीने हो गए थे, तभी इस 6 महीने में सभी इंस्पेक्टर के सामने वो इम्प्रेस कर दिए थे। एंड ऑल इंस्पेक्टर्स एंड ऑल द वॉचमैन्स एंड ऑल द कॉन्स्टेबल्स gave trust on him. And there was a river Yamuna, and which was flowed away about a mile away from their office of the salt department. And there was also a boat bridge over the river, and inspector was sound asleep in the night, and suddenly in the night he woke up and heard, instead of the sound of the river, that the clatter of bullock carts and the shouts of boatmen. साल्ट इंस्पेक्टर उस दिन रात को सो गए थे, और जब वो बहुत ही गहरी नींद लगी थी और थोड़ी देर में उनको जाग गए वो, तभी उनको जो रिवर है यमुना रिवर था उधर नज़दीक में, उस यमुना रिवर के जो पानी का बहता हुआ पानी का आवाज़ उनको नहीं आ रहा था, तब वहाँ उनको जो आवाज़ आ रहा था वहाँ से बुलक कार्ड का जाने का आवाज़ आ रहा था। सो ही वो इमीजिएटली साल्ट इंस्पेक्टर ने मुंशी वंशीधर अपने साल्ट इंस्पेक्टर के कपड़े पहन के और पिस्तौल लेके हॉर्स पे बैठ के इमीजिएटली यमुना रिवर के पास वो निकल गए। और उधर जाने के बाद उन्होंने पूछा ये कार्ड्स किसके हैं, तब उधर से आंसर आ गया कि ये जो कार्ड्स है दातागंज के पंडित अलोपीदीन का है। और उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि ये कार्ड्स कहाँ जा रहे हैं, तो आंसर आ गया कि कानपुर जा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ही आस्क्ड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर इन दिस कार्ड्स, इस कार्ड्स में क्या है, तो कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। और उनका जो कार्ड्स वो स्टॉप हुए थे, और मुंशी वंशीधर कार्ड्स के पास नज़दीक गए और वो चेक किया उसमें क्या था, तो साल्ट। उनका जो सस्पिशियन था वो बराबर हो गया और वो श्योर था। और सब जो कार्ड्स के ड्राइवर थे वो कार्ड्स के ड्राइवर पंडित अलोपीदीन के पास गए और पंडित अलोपीदीन को बताया कि हमारा जो कार्ड है वो कार्ड को इंस्पेक्टर ने स्टॉप किया है। और हियर इमीजिएटली पंडित अलोपीदीन गो टू द नियर द मुंशी वंशीधर के पास गए और उनको पूछा कि मैंने क्या गलती की है कि मेरे कार्ड्स आपने स्टॉप किया है, एंड आई एम अ ब्राह्मीण एंड यू हैव टू शो काइंडनेस टू मी। वंशीधर said that is by the government order I stopped your cards.
एंड पंडित अलोपुद्दीन सेड, मुझे गवर्नमेंट कुछ मालूम नहीं है, आप ही मेरा गवर्नमेंट है, एंड इट इज़ अवर फैमिली मैटर्स एंड वी आर नॉट आउटसाइडर्स एंड यू नीड नॉट हैव टेक दिस ट्रबल. वंशीधर remained unmoved by this captivating tone. और मुंशी वंशीधर said to Jamadar Badlu Singh, take him into the custody and bring him along. This is my order. ये ऑर्डर दिया और पंडित जी वॉज वेरी stopped there and he was dumbfounded, and this was the first time that Pandit ji heard this rude talk. And Badlu Singh moved forward but did not have the courage to hold Pandit ji's hand. Pandit ji had never seen Dharma insulting Arti in such a manner. He thought the inspector was being rude and unmannerly, having not yet succumbed to temptation. He is too young and hesitant. सो पंडित अलोपुद्दीन बहुत ही अच्छी तरह से उनसे बात करने के प्रयास कर रहे थे. उनको ये बता रहे थे कि मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ, बट वंशीधर कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे. एंड नाउ वंशीधर बिकेम एंग्री दैट हियर दिस पंडित अलोपुद्दीन सेड that to one of his person that offer 1,000 rupees to the sahib, he is behaving like a hungry lion. But Vanshidhar was became angry. He says, not forget 1,000, even 1 lakh won't set me from the path of truth. उन्होंने बोला 1,000 नहीं, 1,00,000 रुपीस आप मुझे दे दिया तो भी मैं जो सत्य मार्ग पर मैं जा रहा हूँ वो छोड़ने वाला नहीं हूँ. और पंडित जी हैज़ अ गुड फेथ ऑन earth, okay, because earth can annoy the dharma. Okay, here Pandit ji was annoyed this dharma's blind stubbornness and this renaissance rare even among gods. And now Vanshidhar shouted at the Jamadar Badlu Singh, advanced towards Pandit Alopuddin, cursing the inspector in his heart. Now I will settle it for 25,000, but it is impossible, not 30,000 also, no way, not even at 40,000. आप 30 लाख, उन्होंने बोला कि मैं 25,000 आपको दे दूंगा, 30,000 दे दूंगा. और इंस्पेक्टर ने बोला कि आप 40,000 लिए दिए, क्या 40 lakhs पर दिया तो भी मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ने वाला हूँ. सो ही सेज इट इज़ इम्पॉसिबल. नाउ हियर धर्मा हैड ट्रैम्पल्ड अर्थ अंडर रूट. हियर जो धर्म था, जो सर्विस थी, या ऑनेस्टी थी, या ट्रुथ था, ट्रुथ ने अर्थ को क्या किया, हराया. इधर अलोपुद्दीन सॉ स्ट्रॉन्ग मैन एडवांसिंग टूवर्ड्स एंड हिम विथ हैंडकफ्स. और दूसरे दिन पंडित अलोपुद्दीन के बारे में सब लोग बोल रहे थे. इन द मॉर्निंग एवरीबडी वर स्पीकिंग, देयर वाज एवरीबडीज लिप्स, यंग एंड द ओल्ड. Everybody was commenting on Panditji's conduct. Condemnation came in showers from all sides. If the world had been saved from sinners and sinfulness, and ये सब लोग पंडित अलोपुद्दीन के बारे में ही बोल रहे थे. Okay, but the moment Pandit Alopuddin reached the court, he became the lion of this impenetrable jungle. और जब पंडित अलोपुद्दीन कोर्ट में पहुंच गए, तभी वो एक जंगल के लॉयन की तरह बन गए, क्योंकि इस कोर्ट के में जो लोग काम कर रहे एम्प्लॉय है वो सभी इनके क्या थे, डिवोटीज थे. और जूनियर स्टाफ और लॉयर्स सब इनके सर्वेंट्स थे. प्यून्स, वॉचमैन, ये सब उनके गुलाम थे. तो जब ये लोग उनको पंडित अलोपुद्दीन को देखते कि पंडित अलोपुद्दीन के, दे रैन टूवर्ड्स हिम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन की तरफ पंडित अलोपुद्दीन के पास पहुंच जाते. दे वर सरप्राइज नॉट दैट अलोपुद्दीन हैड डन दिस डेड. और उनको पूरा यकीन था कि पंडित अलोपुद्दीन ने ऐसा कुछ किया नहीं होगा और ये बहुत ही गलत मुंशी वंशीधर ने किया होगा. बट वंशीधर हैड द फीलिंग दैट इवन जस्टिस हैड डिजर्टेड हिम एंड देयर वर विटनेसेस बट दे हैड टर्न वुबली आउट ऑफ ग्रेड. पंडित अलोपुद्दीन के खिलाफ विटनेसेस थे, फिर भी पर विटनेसेस ने पैसा देने के बाद वो विटनेस उन्होंने छोड़ दिया और विटनेस देने के लिए मना कर दिया. और हियर वंशीधर को पंडित अलोपुद्दीन ने हराया. हियर धर्मा एंड अर्थ
were against each other and at the end the victory is of the अर्थ। और लास्ट में ट्रायल, थोड़ी ही देर में ट्रायल हो गया, इधर पंडित अलोपीदीन को छोड़ दिया और द डेप्यूटी मजिस्ट्रेट ने अपने जजमेंट में लिखा कि जो पंडित अलोपीदीन के खिलाफ जो एविडेंस दिए गए वो सब गलत है और मिसलीडिंग है। एंड ही इज़ अ प्रोमिनेंट पर्सन, ये बहुत ही बड़े आदमी हैं। इट इज़ unimaginable that a person like him would break the law for such a small gain। ये सही नहीं है ऐसा बड़ा आदमी के खिलाफ ऐसे छोटे छोटे केसेस करने। एंड नाउ they blame Inspector Vansidar that it is his brazen and thoughtless act has caused needless agony to an honorable man। And the lawyers lived with joy। सभी lawyers जो है बहुत ही खुश हो गए। And Pandit Alopuddin also came out of the smiling। Munshi Vansidar also came out of the court। He was showered with volleys of sarcastic comments from all sides। सब लोग उनके बारे में मुंशी वंशीधर के खिलाफ कमेंट्स कर रहे थे। प्यून लोग जो है मॉकिंगली उनके बारे में बोल रहे थे। बट ईच एंड एवरी हार्श वर्ड और गेस्चर वाज फीडिंग द फायर ऑफ हिज प्राइड। जो लोग बहुत ही गलत और हार्श वर्ड गेस्चर्स कर रहे थे, हाव भाव कर रहे थे उनके सामने, इसके ये देख के उनका जो का प्राइड है वो और बढ़ गया। ऐसा हैड ही वन द केस ही माइट नॉट हैव वॉक्ड विद अ स्ट्रेटर हेड। टुडे ही अंडरवेंट अ स्ट्रेंज रियलाइजेशन। आज उनको ये रियलाइज हो गया, जस्टिस एंड लर्निंग, ग्रेट टाइटल्स, लॉन्ग बियर्ड्स एंड लूज गाउन्स, नन ऑफ दिस वाज वर्दी ऑफ एनी रिस्पेक्ट। और उनको मालूम हो गया जस्टिस है, लर्निंग है, ग्रेट टाइटल्स है, लॉन्ग बियर्ड्स एंड लूज गाउन्स, ये कुछ भी रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। नाउ वंशीदार had antagonized Earth, he had to pay for this। Now hardly a week had passed when he received the letter of suspension। और एक वीक में ही उनको सस्पेंड का ऑर्डर मिल गया और वो घर पहुंच गए। और उनके जो पिताजी थे ओल्ड मुंशी, वो उनको बोला कि द बॉय हैड टर्न्ड अ डेफ ईयर टू हिज एडवाइस एंड वुड हैव हिज वे। Now I have also been in service and was not holding any rank, but I worked and worked hard। उनके पिताजी बोला मैं भी सर्विस किया था, मैंने भी बहुत काम किया है, और आपने जो है ऑनेस्टी दिखाने का कोशिश किया है। It was not good। Never mind, if there is darkness at home, he must light a lamp at the mosque। इट इज़ अनबिलीवेबल, ये जो है अनबिलीवेबल है। ऑल दिस एजुकेशन हैज़ बीन नाउ अ वेस्ट। अभी आपका जो मुंशी वंशीदार ने जो एजुकेशन लिया था वो सभी अभी वेस्ट हो गया क्योंकि वो सस्पेंड हो गए थे नौकरी से। सो वंशीदार रीच्ड होम इन दैट सॉरी स्टेट एंड द ओल्ड मैन हर्ड द न्यूज़, ही बीट हिज हेड। ठीक है, जब मुंशी वंशीदार के पिताजी को ये मालूम हो गया, वो उनकी जो हेड है वो बीट कर रहे थे। He said, I feel like breaking mine and your head। He said many harsh words। बहुत ही harsh words उनके पिताजी ने उसको बोला। Vansidar had not removed himself from his sight। His anger might have turned wild। His old mother was also unhappy। उनकी जो कई माता थी वो भी अनहैप्पी हो गई। उनका जो प्लान था जगन्नाथ और रामेश्वरम, ये होली पिलग्रिमेज प्लेस उनका जाने का जो सपना था वो पूरा नहीं होने वाला था। उनकी जी मुंशी वंशीधर की जी वाइफ थी वो भी कुछ दिन तक मुंशी वंशीधर के साथ बात नहीं की। अभी ऐसे ही एक वीक पास हो गया और इवनिंग का टाइम था। ओल्ड मुंशी जी उनके पिताजी प्रार्थना कर रहे थे तभी वहाँ पे एक चैरियट आ गया और ये ऑर्नामेंटल चैरियट था। उस ऑर्नामेंटल चैरियट से पंडित अलोपीदीन आ गए और पंडित अलोपीदीन को देखकर मुंशी जी के
father, old Munsiji, bowed his head in salutation and opened with a gush of admiration. It is our great fortune to see you at our door. और आप हमारे घर आए, इसके लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। एंड आप हमारे लिए गॉड है। एंड हाउ कैन आई शो माई यू माई फेस, और मैं मेरा चेहरा आपको कैसा दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा चेहरा पूरा ब्लैक कर दिया है। बट हाउ कैन आई शो माई फेस, बट व्हाट कैन आई डू, माई सन इज लकलेस ब्लैक sheep. Otherwise, why should I have to hide my face out of shame? God should keep one issueless rather than shame one with such a son. तो उनके पिताजी बोलते हैं कि गॉड ने ऐसा लड़का नहीं देना चाहिए था मुझे, कि जिसके लिए मुझे आपके तरफ शेम करना पड़ा। अलाउद्दीन सेड, नो भाई साहब, डोंट से ऑल दिस। तो अलाउद्दीन बोल रहे थे कि ऐसा कुछ मत बोलो। मुंशी जी बहुत ही सरप्राइज हो गए। व्हाट हिल शुड आई से अबाउट सच ए प्रॉग्नी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में। अलाउद्दीन स्पोक इन अ वॉइस फुल ऑफ लव, पीपल स्टेडफास्ट इन ड्यूटी एंड रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू प्रिजर्व देयर धर्म एंड इनहांस द ग्लोरी ऑफ देयर फैमिली एंड एंकेस्टर्स आर रेयर इंडेड। और पंडित अलाउद्दीन अतिशय प्रेमपूर्वक बोले कि ऐसे लोग होते हैं जो उनके फैमिली का, उनका पूर्वज का नाम बड़ा करना चाहते हैं, और नौकरी के टाइम वो पूरा अपना सैक्रिफाइस कर देते हैं, और उनका जो धर्म है वो प्रिजर्व करने के लायक रहते हैं। ऐसा बहुत ही कम लोग रहते हैं जैसा आपका बेटा था। पंडित अलाउद्दीन सेड टू वंशीदार, पंडित अलाउद्दीन ने वंशीदार को बताया, इंस्पेक्टर साहब, डोंट ट्रीट दिस एज फ्लैटरी, और आई डिड नॉट हैव कम टू सो फ्लैटर यू, मैं यहाँ पे आपके बारे में बोलने के लिए नहीं आया हूँ कि आज मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। एंड ही सेड, एंड यू हैव टू ट्राई टू अपोलाइज एंड डिड नॉट लाइक हिज फादर फॉनिंग एटीट्यूड। तो पंडित जी ने बताया कि सब जो आपके मन में है द्वेष, वो सब आप फॉरगेट कर दो, एंड you are being very generous in saying all this. Please forgive me for the disrespect I showed you. I was shackled in the chains of dharma. Otherwise, I am your humble servant. I am ready to obey your orders. और मुंशी वंशीधर ने कहा कि मैं भी आपका एक अच्छा सेवक हूँ, लेकिन मैं धर्म के चेन्स में बांधिल था, इसके लिए मैं आपको अरेस्ट कर दिया था। पंडित अलाउद्दीन अपने हम्बल वॉइस में उनको बोला, यू डिड नॉट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट एट द रिवर बैंक, बट टुडे यू विल हैव टू डू इट। आपने उस दिन जो मैंने पैसा देने का कोशिश की तब आपने एक्सेप्ट नहीं किया, बट आज मैं जो आपको दे रहा हूँ वो आपको एक्सेप्ट करना है। बट वंशीधर ने सड़ा कि मैं अभी आपका लायक नहीं हूँ, बस फिर भी मैं मेरा कोशिश करूँगा। अलाउद्दीन उनके साथ जो जुडिशियल पेपर लेकर आए थे वो पॉकेट से निकाला और वो वंशीधर के सामने रख दिया। एंड सेड, एक्सेप्ट दिस पोजीशन एंड पुट योर सिग्नेचर हियर। ये जो पोजीशन मैं पोस्ट आपको दे रहा हूँ, ये पोस्ट एक्सेप्ट करो और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करो। सो ही सेड, आई एम अ ब्राह्मीण एंड शैल नॉट गो अवे अंटिल यू एग्री टू दिस। मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं साइन लेकर ही जाऊँगा। When Vanshida read what was written on the paper, his eyes were filled with tears out of gratefulness. जब वंशीधर ने वो लेटर पढ़ा, उस लेटर में जो लिखा था वो पढ़ने के बाद उनकी जो आइज़ है, आइज़ में से टीयर्स बहने लगे, आंसू बहने लगे। पंडित जी had appointed him the manager of all his properties and now a salary of 6,000 rupees per annum, and besides the daily expenses, horse to ride, bungalow to live, and also servants. And Pandit ji, I don't have the words to praise your generosity,
बट आई एम नॉट फिट फॉर सच अ बिग पोजीशन। वंशीधर ने कहा कि ये जो मैनेजर का पोस्ट है ये बहुत बड़ा पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए मैं लायक नहीं हूँ या फिट नहीं हूँ। बट पंडित जी ने बोला, एट दिस मोमेंट आई नीड ओनली एन अनफिट पर्सन, मुझे इस टाइम अनफिट पर्सन की ज़रूरत है। एंड वंशीधर ने बोला कि मैं आपका एक हम्बल सर्वेंट हूँ। इट विल बी माई गुड फॉर्चून टू सर्व सच एन ऑनरेबल एंड फेमस पर्सन, बट आई हैव neither education nor the wisdom nor the temperament to make up for my weaknesses. You need an experienced and far-sighted man for this job. वंशीधर ने कहा, आपको बहुत ही बड़ा एजुकेटेड आदमी की ज़रूरत है, बहुत ही होशियार आदमी की ज़रूरत है, जिनका टेम्परामेंट अच्छा है, जो एक्सपीरियंसड है और जिसका फार साइटेड विजन है, वही आदमी आपका मैनेजर बन सकता है। मेरे जैसा आदमी आपका मैनेजर नहीं बन सकता। फिर भी अलाउद्दीन ने पेन निकाला आपके जेब से और ये वंशीधर को दे दिया और कहा कि मुझे कोई लर्न आदमी नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं चाहिए, या जो जिनका फार साइटेड विजन है वैसा ही आदमी नहीं चाहिए, और नॉट ए एक्सपर्टाइज ऑल्सो। मैंने आपका ये टेस्ट कर दिया है, आपके पास जो क्वालिटीज़ है इसका मैंने ऑलरेडी अंडरस्टूड कर दिया है। नाउ फॉर्चून हैज़ कास्ट बिफोर मी अ पर्ल दैट आउटशाइन्स द ब्रिलियंस ऑफ द एबल एंड द लर्न। टेक दिस पेन, डोंट थिंक टू मच एंड साइन दिस पेपर। और ये पेन ले लो, इसके ऊपर आप साइन कर दो। आई प्रे टू गॉड दैट ही शुड ऑलवेज कीप यू एज स्टेडफास्ट, fearless and unwavering yet committed to dharma as you were on the river bank। और वो गॉड को प्रे करते हैं कि आप धर्म के बारे में जो सोचते हैं, जैसे आप थे वैसे ही रहे, जैसे आप रिवर बैंक नदी के किनारे में जब आपने मुझे अरेस्ट किया वैसे ही आप रहे, ऐसा वो गॉड को प्रे करते हैं। वंशीधर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, वंशीधर के अश्रु बहने लगे। एंड हिज स्मॉल हार्ट कुड नॉट contain such generosity. Once again he looked at Pandit ji with devotion and reverence and signed the contract with a trembling hand। और लास्ट में मुंशी वंशीधर ने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दिया और ये अभी पंडित अलोपीदीन के सभी प्रॉपर्टीज के मैनेजर बन गए। एंड नाउ एट लास्ट अलोपीदीन embraced him with great joy। It was a very simple story, but this story is about the honesty, truth, and here virtue is rewarded। So this story is written by Munshi Premchand, a famous Hindi writer and Urdu writer। Thank you all of you। I think all of you understood this story, and I request all of you, if you like this story, then please subscribe, like and share my channel।